in previous classes we have learned regarding the male reproductive system, and now it is the turn for female reproductive system. And as we know that in a system there are various organs, there are different organs, and they are working in a coordinated fashion to attain a particular task. For performing a particular task, here there are different organs, and the organ which is the VIP, which is the main, that means in case of reproduction it is gametogenesis. First of all there will be gametogenesis, then transfer of gamete, after that fertilization, implantation, embryonic development and childbirth. This is the whole process in connection with reproduction. And for the development of gamete, for the maturation of gamete, that means gametogenesis, the organ responsible for that is termed as primary sex organ. So in case of female it is ovaries, a pair of ovaries. In case of male it was testis that was lying outside. Here it is a pair of ovaries that is inside the body. Maturation of egg, maturation of ovum will take place inside ovary. In case of female, the primary sex organ is a pair of ovaries where maturation of ovum, egg will take place, and it happens at a certain interval of time, and that cyclic way is termed as menstrual cycle or menstruation. In case of male, there is production of gamete. The main function, the main task of the gonad of the primary sex organ is to produce the sperms. Spermatogenesis is there, and second one is the production of male hormone, male sex hormone, androgen, basically testosterone, and that testosterone is meant for development and maintenance of secondary sexual character and spermatogenesis. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि comparatively the male reproductive system is simple, but in case of female there is difference. Difference कहाँ होगी कि in the life cycle of the female there is different, because after birth there will be development in childhood, and after attainment, that means up to birth to puberty, one phase. After puberty, menarche to menopause, reproductive phase, and during that phase, as per the need of the time, there will be synthesis of different types of hormones, and it is not only from the ovaries, rather from the pituitary gland. That means there is a well synchronized mechanism regulated by endocrine gland and ovary in case of female for maintenance of health and hygiene. डॉक्टर के पास जाते हैं जब कभी फीमेल के ट्रीटमेंट के लिए, लेडीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, और यदि एज है 15-20 साल या एबव है तो डॉक्टर दिखाने के लिए लेडीज़ को जा रहा है क्या, हेडेक हो रही है, प्रॉब्लम लाइज इन हेडेक इज देयर, लेकिन डॉक्टर ये ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर के लिए. कई बार लोगों को लगे कि एक आम आदमी की तरह सोचें तो क्या लगेगा कि डॉक्टर के पास हम किस लिए आए हैं, सर दर्द के लिए, और डॉक्टर क्या पूछ रहा है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या नहीं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना क्या है, दैट मीन्स ऑल द हार्मोन्स आर वर्किंग एप्रोप्रिएटली, एवरीथिंग इज ओके. मतलब जो हार्मोनल बैलेंस है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या परफेक्ट है. अब किसी में किसी कारण से यदि शॉर्टर है या लॉन्गर है या इरेगुलर है या कहीं भी किसी तरह की अनियमितता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट विल हैम्पर, दैट विल हैव द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ ऑफ द फीमेल. Period is regular, that means it is healthy sign in case of female.
the female reproductive system is complex with respect to that of the male reproductive system, because in case of male there will be spermatogenesis, release of sperm, work is over. But in case of female there is maturation of egg, that means oogenesis, release of egg, that is after oogenesis ovulation will be there. फीमेल के केस में क्या होंगे? फीमेल के केस में क्या होगी? In case of male it is spermatogenesis and ejaculation, work is over. But in case of female the work starts right from the ejaculation. After that there is complexity. Prior to that there is oogenesis, means maturation of egg cell, ovum, then release of egg cell at the mid of the menstrual cycle. On the 14th day of the menstrual cycle there will be release of the egg cell, ovulation, then fertilization. After fertilization, implantation, then embryonic development, childbirth and childbirth. So all the processes are going inside female, and therefore there is requirement of a well organized hormonal system and their functioning. The female reproductive system lies in the abdominal chamber. Lower abdominal chamber means pelvic region. कहाँ ये लाई करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पेल्विक रीजन. ऊपर का चैम्बर है दैट इज थोरेसिक चैम्बर. डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक चैम्बर, जहाँ क्या है? लंग्स, हार्ट. नीचे में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर नीचे क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें क्या होंगे? ओवरीज लाइंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ. और उसके बाद क्या होंगे? डक्ट सिस्टम इज देयर. Secondary sex organs, that means duct system. So in vicinity of the ovary there is fimbriae. There is the terminal end of the oviduct, fallopian tube. यानी कि स्ट्रक्चर क्या होंगे? डक्ट सिस्टम में क्या होगी? ओवरी के बाद क्या होंगे? fallopian tube. So the duct system having fallopian tube or oviduct means a pair of fallopian tube that is arising in the vicinity of the ovaries. एकदम से कांटेक्ट में नहीं है, सटा हुआ नहीं है, उसके क्या है? काफी नजदीक है. ऐसा नहीं कि उसमें जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, उसके काफी करीब है. नर्व एंडिंग देखा है तुम लोग? एक्सॉन टर्मिनल. एग्जैक्टली इन केस ऑफ सिनेप्स देयर इज एक्सॉन टर्मिनल, and when the message, the stimulus comes, the message has to travel to the next neuron through dendrites. Then what will happen? There are chemicals, neurotransmitters, cholecystokinin, acetylcholine, and that is being released, and that chemicals are being grasped by the another terminal, that is terminal of the dendrite. Likewise फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होंगे? नियर ओवरी देयर इज ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, और ये खुलेंगे किस फॉर्म में? फनल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, फिम्ब्री. उसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्री. अब यहाँ से स्टार्ट हुई, और इसके जो इनसाइड है, इनर लाइनिंग है ओविडक्ट का, फैलोपियन ट्यूब का, वो कैसा है? सिलिएटेड है. सिलिएटेड एपिथेलियम इज देयर फॉर पुशिंग द एग. जो एग सेल है या फिर जाइगोट बन गए कहाँ? इन एम्पुलरी रीजन. एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइज एग को क्या करेगी? ये प्रोपेल करेगी. कौन? सिलिया इन द ओविडक्ट, इन द फैलोपियन ट्यूब. उसके बाद क्या होंगे? ये आएंगे कहाँ? यूट्रस में. ना यूट्रस कैसा स्ट्रक्चर है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. और यूट्रस में ही क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. जो यूटेराइन वॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये काफ़ी एक्सटेंसिव होंगे. जब फुल्ली ग्रोन चाइल्ड होंगे, जब चाइल्ड बर्थ होगी उसके पहले, तो ओवरऑल जो वेट है चाइल्ड का, प्लेसेंटा का और एम्नियोटिक फ्लूइड का, ये 8 से 10 केजी होती है. कितना होता है? 8 to 10 केजी. और ये ऐसे यदि साइज में देखोगे तो क्या होगा? एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का है. जो यूटेरस है उसकी साइज क्या होगी? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. देख लो डायमेंशन क्या है? दिस इज द डायमेंशन.
तो इस साइज से एक्सटेंड हो रहा है 8-10 kg का कोई भी मटेरियल है, उसको देख लो तो उसकी शेप और साइज का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इतना इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसकी जो वॉल है दैट इज 3 लेयर्ड, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है, इनर लाइनिंग है, वहाँ क्या होते हैं, प्रिपरेशन होती है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द जाइगोट इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इम्प्लांटेशन होगी, फर्दर इसका डेवलपमेंट होगा, और जब फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगी तब क्या होंगे, चाइल्ड बर्थ होगी। तो यूटेरस प्लेस है जहाँ क्या होंगे, इम्प्लांटेशन से चाइल्ड बर्थ तक के सारे प्रोसेस होंगे। कहाँ, यूटेरस में। जब एग रिलीज हो गया, ग्राफियल फॉलिकल रप्चर कर गया, अब ये ग्राफियल फॉलिकल डिपेंड करेगा वेदर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस और नॉट। यदि फर्टिलाइजेशन होती है तो ग्राफियल फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू क्या बना देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। यदि नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तब ये ग्राफियल फॉलिकल क्या बना देंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेंगे, इट स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन, इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। तो आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन इनसाइड यूटेरस क्या होगी, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। खुद वहाँ से जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है वहाँ से मैसेज जाएंगे, फिर ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा और उसके कारण चाइल्ड का एक्सपल्सन होगा आउटसाइड वर्ल्ड में थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना, एंड देयरफॉर कंबाइंडली द सर्विक्स एंड वेजाइना इज टर्म्ड एज बर्थ कैनाल। कंबाइंडली इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम which is opening outside, that is collectively termed as external genitalia or vulva, that is having lip-like structure, folds of skin, labia majora, labia minora and clitoris. This is the external genitalia. And after the birth of the child, the responsibility for the feeding of the child or caring of the child also goes to the mother. So at the same time there is mammary gland, and that mammary gland works in coordination with, in an integrated way with the reproductive system for feeding the child. यानी कि जब child birth हो जाएगी तो क्या होंगे, there will be production of milk from mammary gland, और ये mammary gland से milk secrete होती है और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए। तो जब तक बच्चा कहाँ था, इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड इनसाइड मदर्स बॉडी, सेफ जोन में, जैसे ही बाहर आया देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। बाहर आया तो क्या होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस है। तो जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर में, दैट इज हैविंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट इज टर्म्ड एज कोलोस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसको, कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। एंड इट इज फुल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कि दैट इज मस्ट फॉर बेबी। वो क्या हो गया है, एकदम जीवनदायक है। जो गाढ़ा पीला दूध है जो फर्स्ट टाइम सिक्रीट हो रहा है मेमरी ग्लैंड से, दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी। और फिर कंटिन्यूसली मदर मिल्क में क्या है, आ रहे हैं क्या, रेडीमेड एंटीबॉडी फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी। और इसके लिए प्रमोट किया जाता है क्या, ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। और ये कौन सा महीना है, अगस्त है। इसमें भी कोई दुविधा है क्या, तो अगस्त का पहला सप्ताह, द फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। some of the mother, some of the women, they are purchasing milk from outside, from market to maintain their figure, but that is negative. Mother's milk मतलब जब mother बच्चे को दूध पिलाती है तो it is not only beneficial for the child but it is beneficial for mother also.
जो प्रोफ्यूज लैक्टेशन हो रहा है, तो प्रोफ्यूज लैक्टेशन जब तक होता रहेगा प्रेगनेंसी के चांसेस 0 रहेंगे। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो नॉर्मेंसी की ओर जो बॉडी है जो डेवलप हो गया था, जो फैट की डिपोजिशन हो गई थी, तो नॉर्मेंसी की ओर आने में जो फीडिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, उसके चांसेस को मिनिमाइज करता है। चाइल्ड के लिए तो बेनिफिट है ही, चाइल्ड के लिए फुल न्यूट्रिएंट है वहाँ, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मदर और चाइल्ड के बीच बॉन्डिंग की डेवलपमेंट होती है, स्किन टू स्किन टच है। जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो मदर का आई कनेक्शन है बच्चों के साथ, एंड दैट बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और इसीलिए जो मदर्स मिल्क है वो ऐसा नहीं है कि केवल फीडिंग है, वो बच्चे के लिए लाइफ लाइन है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर टू फीड देयर चाइल्ड। तो मिनिमम 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, नथिंग, इवन पानी भी नहीं देना है। 6 महीने तक बच्चे को केवल मदर्स मिल्क प्रोवाइड करना है नहीं। लेकिन आजकल मार्केटिंग है और जो मार्केट में अवेलेबल है जो भी चीज़ें, वो क्या करती है, मिसगाइड करती है लोगों को, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट करती है कि लगता है सारा कुछ वही है और इसीलिए वही खिलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल तक बच्चे को मदर का मिल्क पीना चाहिए। 6 महीने तो 100%, फिर 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा फूड ऐड करेंगे, नहीं 6 महीने से साल भर तक, फिर साल से 2 साल तक में और फूड ऐड करते जाएंगे, मिल्क को कम करते जाएंगे, यानी कि 2 साल तक बच्चों को दूध पीना है। और यदि शाहजहाँ की तरह बच्चे हुए तो पता चला 2 साल में 2 बच्चे तैयार हो गए, अब वो बच्चा दूध कहाँ से पिएगा, तो हेल्थ कहाँ से अच्छा होगा उसका? नहीं, हेल्थ की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, दैट इज रॉन्ग। देयरफॉर स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड, 2 बच्चों के बीच दूरी आवश्यक है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे हम लोग कल आगे इसके आगे इन डिटेल द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।